First of all, I would like to thank UPSC Time team to give me this opportunity to share my experiences with you all regarding my journey and all these things. Yes, actually, they have given me around 75 questions to answer as per my own experiences. So one by one, first of all, I will try to address all those 75 questions of that has been sent to me by UPSC YouTube live UPSC YouTube team. And once I will be completing the answering of those questions, then if anybody will have any doubt, he or she can approach with their doubts freely. Feel free to ask, right? But first of all, I would like to request you to listen the answers patiently, right? Okay. Before beginning of answering this question, let me give you a brief introduction of myself. Hi, my name is Bradati Datta. I am from West Bengal, North 24 Pargana district, and this year, by God's grace and all my seniors' blessings, my hard work has finally paid off, and I have secured All India rank 346 in this year UPSC Civil Service examination. This was my second attempt, or I prefer to call it as the first serious attempt in UPSC, because last year it was only for the experiences and I could not clear prelims, but this year it was my first months and first interview, and my optional was agriculture, and talking about some other details, I would like to tell you that I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya of the district of my home district, and then I have pursued my agricultural science graduation from Vishwabharati University, Birbhum district of West Bengal, and then also I have completed my masters in seed science and technology from Orissa University of Agriculture and Technology, Bhubaneswar, Orissa. I have completed my masters in 2022 only. Then after completion of my masters, I have written this attempt of 2023, right, and in which I have been selected. Okay. It was the brief introduction about myself. Then they have asked me to talk about my UPSC journey with you, and मैंने सच बोलूँ तो क्वाइट मेरा जो जर्नी था वो मतलब मैंने कभी लाइक मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स UPSC was not my childhood dream. जस्ट आफ्टर completion of my graduation, मैंने जब सोची कि करियर में मैं किस तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्या क्या ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, तो फिर मुझे इसका सिलेबस बहुत अच्छा लगा. मैं सोची कि अगर UPSC को मैं तैयारी करूँगी तो मतलब इसका जो अपॉर्चुनिटीज़ है मेरे लिए सुइटेबल है, और ये सब कुछ. और फिर मैंने 2020 दिसंबर में जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, तब से मैंने स्टार्ट की, लेकिन उतना मेरा हिम्मत नहीं था कि इतना अनसर्टेनिटीज़ है, इतने सब कुछ है, तो अकेले पूरा इसमें मैं प्रिपरेशन करते रहूँ, तो इसीलिए मैंने मास्टर्स का प्रोग्राम भी एनरोल की हुई थी. मास्टर्स मैं जो बोल रही थी कि थोड़ा कनेक्शन बीच में लूज़ हो गया था इसका इंटरनेट का, तो गेटिंग बैक टू दी थिंग्स अगेन, तो मैंने मास्टर्स के साथ ही मैंने इसका प्रिपरेशन जर्नी रखी थी. और मैंने जो जर्नी थी ना, तो 2020 में जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, तो एज कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे बहुत कुछ नया चीज़ पढ़ना था, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, तो मैंने इसीलिए कुछ कोचिंग शुरू में ही ज्वाइन करने के लिए नहीं सोची थी. मैंने पहले सोचा कि मैं खुद का फाउंडेशन बनाऊंगी, और फिर अगर मुझे ज़रूरत होगा तो मैं जाऊंगी कोचिंग के लिए, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए. तो 2021 मैंने जब मास्टर्स कर रही थी, 2022 के मिडल तक मैंने खुद से सेल्फ स्टडी की. उसके बाद मेरा मास्टर्स ख़त्म हो गया. तो उस टाइम मैंने मेरे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एक स्टेट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है, सत्यनारायण टैगोर सिविल सर्विस स्टडी सेंटर, जहाँ पे दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट KSG और शंकराचार्य अकेडमी के साथ वो लोग कोलैबोरेट करके पढ़ाते हैं. तो मैं KSG के साथ तब जुड़ी हुई थी. 10 मंथ्स का एक प्रोग्राम था, तो मैंने उसमें कुछ क्लासेस अटेंड किए, उसके कुछ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की. तो यही था मेरा UPSC जर्नी. तो पहले मैंने एक लेयर्ड अप्रोच फॉलो की थी. पहले मैंने खुद सेल्फ स्टडी की, उसके बाद मुझे जब ज़रूरत लगा कि तब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी. तो ये ओवरऑल मैं बता सकती हूँ अभी के लिए.
आपके सक्सेस का क्रेडिट आप किसे देते हैं? देखिए, ये बहुत लंबी जर्नी होती है। बोला जाता है कि यूपीएससी एक मैराथन है, तो बहुत जन आते जाते हैं। मतलब इस जर्नी में मैं मानती हूँ कि जिसने भी मुझे थोड़ा सा भी हेल्प किया है ना, मैं सबकी आभारी हूँ। मेरे माता पिता, मेरे जो स्कूल के मेरे टीचर, मेरे कॉलेज के टीचर, मैं सबके आभारी हूँ। मेरे जो दोस्त मेरे साथ थे, कुछ दोस्त के साथ मैंने जब जिनके साथ पढ़ाई की थी, इसके दौरान मैं बातें करती रही, तो मैं सबसे बहुत थैंकफुल हूँ सबके ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड दैट प्रीलिम्स जीएस सीसेट की तैयारी कैसे की, और उसके बाद है मेंस की तैयारी, हर एक पेपर की तैयारी मैंने कैसे की। तो इसका मैंने कॉम्बाइन आंसर देने की ट्राई कर रही हूँ। देखिए, मैंने जब शुरू की ना मेरा प्रिपरेशन, तो मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंसेस था। क्या एक्सपीरियंस कि मैंने बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लिखती रहती थी, स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत लर्निंग्स मिली थी उससे। जैसे जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, ओलंपियाड वगैरह, मैं लिखती थी, और मैं हमेशा मेरे मतलब अगर रिजल्ट अच्छा भी नहीं होता था तो मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा सीखो, जो गलती होती है ना, गलती होता रहता है, उससे सीखो, दोबारा वो गलती मत करना। तो बाय द टाइम आई वाज एंटरिंग इनटू दिस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आई हैड दोस एक्सपीरियंसेस, जो कि गलती मैंने पहले किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में की हुई थी। फॉर एग्जांपल, मैंने जब नीट लिखी थी तो मेरा उतना गाइडेंस नहीं था, तो उतना पता ही नहीं था कि सिलेबस पढ़ना होता है, PYQs देखना पड़ता है, एग्ज़ाम के बारे में जानना पड़ता है। तो ये सब मेरे पास एक्सपीरियंसेस था, गलती का एक्सपीरियंस था, खुद के गलती का। तो मैंने मेरे खुद के गलती से इस बार मैंने सीखने की कोशिश की, और मैंने ये ठान ली थी कि दोबारा मैं वो सब गलती नहीं करूँगी। तो 2020 जब दिसंबर था, जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था, मैं मास्टर्स एनरोल करेंगी, तो इसमें मैंने क्या की थी, मैंने पहले सिलेबस बहुत अच्छे सिलेबस डाउनलोड की, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की ऑफिशियल जो सिलेबस आता है, उसको मैंने डाउनलोड करके अच्छे से मैं पढ़ी, क्या पेपर आता है, कितने मार्क्स आते हैं, कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव, सब कुछ, कितने पेपर्स होते हैं, ऐसे करके मैंने पहले पेपर्स को अच्छे से जाने। उसके बाद एग्ज़ाम के प्रोसीड्यूर के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि मेरे जो फैमिली है उसमें कोई सिविल सर्वेंट नहीं है, ना कि मेरे आसपास कोई है, तो मैं फैमिली से पहले सिविल सर्वेंट हूँ। तो इसीलिए मेरा ये था कि मुझे पहले एग्ज़ाम के बारे में जानना है, कितना स्टेज में एग्ज़ाम होता है, क्या प्रोसीड्यूर है, कहाँ लोग गलती करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि इट हैज़ बीन टोल्ड दैट डोंट मेक द रिपीटेड मिस्टेक्स इफ़ यू कैन मेक ओरिजिनल मिस्टेक, राइट। जो गलती आप किसी ने किया हुआ है तो आप वो गलती दोबारा मत कीजिए। तो मैंने फिर चेक किया कि यूजुअली लोग कौन से गलती करते रहते। हाँ, जो बता रही थी कि फिर मैंने जब इसका सिलेबस मैंने देखी, उसके बाद PYQs भी मैंने साथ में ले लिया, और मैंने शुरू में बहुत सारे टॉपर्स वीडियोस देखे, क्योंकि तब जैसे आई शुड टेक द नेम्स लाइक अक्षत जैन सर, जो ऑल इंडिया रैंक 2 लाए थे, नेहा बैनर्जी मैम ऑल इंडिया रैंक 20, कनिष कटारिया सर, सृष्टि देशमुख मैम। मीन्स मैंने प्रिपरेशन में डायरेक्टली जंप नहीं किया, उसके पहले एग्ज़ाम के बारे में जानी, सिलेबस के बारे में जानी, जितने सारे टॉपर स्टॉक्स होते हैं, टॉपर स्ट्रैटेजीज होते हैं, उस मतलब मैंने पहले शायद एक हफ्ता इसी में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड की कि एग्ज़ाम के बारे में जानने में, ठीक है। उसके बाद मैंने जो भी कॉमन बुक लिस्ट है सबके, मतलब 3-4 मतलब करीबन 5-6 जन के टॉपर्स के अच्छे से बातें सुनकर, उसके बाद मैंने खुद एक स्ट्रेटेजी डिसाइड की, खुद एक प्लानिंग बनाई कि मैंने ऐसे मुझे मूव करते रहना है, एटलीस्ट ट्राई करते रहना है, क्योंकि प्लानिंग इज़ नॉट दी मीन्स ओनली दी वन थिंग, एग्जीक्यूशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। ओके, तो ये मेरा अप्रोच था। तो फिर मैंने ऐसे डिसाइड की कि एक लेयर्ड अप्रोच में जाना है। लेयर्ड अप्रोच इन द सेंस कि मुझे पहले मेरा फाउंडेशन खुद को तैयारी करना है। मेरे पास ऐसे लिखा हुआ था कि मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके मैंने ये सब एक जगह में कर ली थी कि मैं क्यों जा रही हूँ यूपीएससी, वाई आई वांट टू गिव दिस एग्जामिनेशन, why not in other things. So because as this is a long journey na, so it will ultimately help you when you will be looking back at your own writing, that why you decided to enter into this journey. So this will give you energy in the long run. So I have written all these things. Then ग्रेजुअली मैंने ये भी डिसाइड कर ली थी कि मुझे शुरू में कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है, क्योंकि देखिए कोचिंग में ऐसा होता है ना, आप जैसे फाउंडेशन कोर्स अगर जा रहे हो तो सही है, लेकिन
मैक्सिमम जो क्रैश कोर्स होता है उसमें बहुत जल्दी वो लोग जाते हैं। और मैं, हाँ, तो जो बोल रही थी मैंने, तो मैंने पहले जैसा कि मैंने खुद फाउंडेशन बनाऊंगी, तो फाउंडेशन जब मैं शुरू की तो ऐसे कि मैंने क्या क्या एनसीईआरटीज़ पढ़ना पड़ता है, एडवांस बुक क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ऐसे मैंने डिसाइड करते गए, ठीक है। तो मुझे जो टॉपर स्ट्रेटजीज से, बहुत सारे टॉपर स्ट्रेटजीज से ये मुझे पता चला था कि जो भी सिलेबस है ना मेंस का, उसको मतलब उसको पहले पढ़ लेना चाहिए। मतलब डायरेक्टली करंट अफेयर्स के पीछे मैं भागना, मतलब भागते जा रही हूँ, ये नहीं करना है। तो मैंने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा कोर सब्जेक्ट है और एक स्वॉट एनालिसिस किया कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, क्या मेरा वीकनेसेस क्या है। ऐसे मुझे लगा कि मेरा आर्ट्स के बैकग्राउंड के जो भी सब्जेक्ट्स है वो मेरे मतलब मैंने उतना अच्छे से कभी पढ़ी नहीं थी, मेरे मतलब या तो भूल गए, तो मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि इस पर मुझे ज़्यादा टाइम देना है। और एक मृणाल सर की जो एक स्ट्रैटेजी आती है ना, मतलब टाइम टेबल, उसको भी मैंने, उसका भी थोड़ा डिफरेंस मैंने ली थी उनके जो चैनल्स है। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, पहले एनसीईआरटीज उठाई, वो भी कोर सब्जेक्ट के। आप अच्छे से सिलेबस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कोर सब्जेक्ट क्या है, मतलब जो मेजर सब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, these are some, and science and technology, these are some subjects which comes in both prelims and in mains, right? So ये मतलब कंबाइंड प्रिपरेशन करना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस अलग से नहीं। आप पहले फाउंडेशन थे, मतलब मैंने मेरे फाउंडेशन इन सबके कोर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट्स के पहले तैयारी करने की ट्राई की। तो मैंने बिगिनिंग में क्या की कि जैसे पॉलिटी का 11th 12th के एनसीईआरटी उठाई। तो उसको मैंने ऐसे टारगेट रखा था कि मैंने एक हफ्ता में एक एनसीईआरटी खत्म कर दूंगी। क्योंकि आपको लगता होगा कि कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी हमारा ब्रेन भी मैच्योर हो गया है। ऐसा नहीं कि एक बुक पढ़ने के लिए पूरा एग्जामिनेशन साइकिल जैसे बचपन में लगता था वैसा है। अभी आप कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, अगर आप टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं सही तरीके से। तो मेरे पास भी टाइम कंस्टेंट था, फाइनेंशियल कंस्टेंट भी था, तो मैंने सोचा कि सेल्फ स्टडी करूँगी। तो मैंने पॉलिटी के एनसीईआरटी से स्टार्ट की, 11th के, फिर 10th 12th के। फिर मैंने इकोनॉमी के क्या किए, मैंने तमिलनाडु बोर्ड के जो एनसीईआरटीज आती है उसको मैंने गो थ्रू की। वो कलरिंग भी था और माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा टर्मिनोलॉजीज वगैरह जानना था, तो उसको मैंने पढ़ी। फिर जियोग्राफी उठाई एनसीईआरटीज, ओनली 11th 12th की एनसीईआरटी उठाई थी। ये सब के मैंने 11th 12th की ओनली एनसीईआरटीज पढ़ी थी जियोग्राफी की। फिर हिस्ट्री की आई, हिस्ट्री के भी तमिलनाडु बोर्ड के जो 11th 12th के 12th के नहीं 11th के जो एनसीईआरटी आती है तमिलनाडु बोर्ड की, उसको मैंने पढ़ी। क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड के जो एनसीईआरटीज होते हैं ना हिस्ट्री के लिए, वो क्या ना क्रोनोलॉजी दिया हुआ है। न्यू एनसीईआरटीज जो है, जो कि हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं, अभी जो चल रही है, उसमें थीमेटिक अप्रोच बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 500 BC से 500 CE में क्या हुआ है, आर्ट एंड कल्चर में क्या डिफरेंसेस आई है, कौन सा डायनेस्टी ने क्या कंट्रीब्यूशन की है। पर जो तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसमें क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन एज टू IVC टू वैदिक टू महाजनपद टू मौर्यास टू पोस्ट मौर्यास, ऐसे करते करते एंशियंट, अर्ली मिडिवल ऐसे करते करते दिया हुआ है। तो एक क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से बैठ जाता है तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री से। तो मैंने इसको पढ़ी। फिर मैंने हिस्ट्री जब 3-4 मेजर सब्जेक्ट ख़त्म हो जाने लगा, फिर मैंने इसके एडवांस स्टेज में जाने लगे। इस दौरान मैं बस कुछ नोट्स नहीं बनाए, कुछ ऐसे नहीं, मतलब कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह इसमें, क्योंकि मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रही थी, मुझे फाउंडेशन अच्छे से तैयारी करना था मुझे। तो इसमें मैंने करंट अवेयरनेस बस रखती थी, लेकिन कुछ नोट्स नहीं बना रही थी, ठीक है। क्योंकि मेरा हमेशा फोकस था कि मेरा स्टैटिक का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। फिर मैंने क्या की, नेक्स्ट लेवल पे मैंने सेल्फ स्टडी के दौरान उसके बाद जो भी एडवांस बुक होता है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के जो स्पेक्ट्रम की किताबें आती है, फिर आपके जो हिस्ट्री के लिए और भी जो मान लीजिए आपका न्यू एनसीईआरटीज भी हो गई इस बार, मतलब एडवांस स्टेज में, इसको मैंने उठाई। फिर धीरे धीरे मैंने ये सब पढ़ने लगी। और इस दौरान ना जब आप सेल्फ स्टडी करते रहेंगे शुरू में, तो आपको डाउट्स होते रहेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ भी अगर डाउट हो जाए और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे जाइए, उस टॉपिक के बारे में लिखिए, आपको कुछ वीडियो आ जाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिए कि वीडियो के पीछे भागना नहीं चाहिए। आप ऐसे माइंडसेट बना के रखिए कि मुझे ये डाउट हो रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादातर 3-4 वीडियो देखूँगी, मुझे इसमें ही समझना चाहिए। और हमेशा याद रखिए कि ये प्रिपरेशन में आपको ना कि बहुत सुपरफिशियल लेवल में पढ़ना है कि शॉर्टकट में मेरा हो गया, वो भी नहीं होगा।
ना कि मैं बहुत पीएचडी करते जा रही हूँ कि बहुत डीप लेवल में पढ़ते जा रही हूँ, वो भी नहीं होगा। आपको एक ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम डेप्थ के तरफ से मतलब तक पढ़ना चाहिए, राइट। बहुत बहुत कम भी नहीं, एकदम शॉर्टकट भी नहीं, बहुत पीएचडी लेवल की पढ़ाई भी नहीं, एकदम ऑप्टिमम लेवल का, ठीक है। ये आप हमेशा दिमाग में रख के चलिए कि स्मार्ट मतलब हार्ड वर्क विथ स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट स्टडी, राइट। ठीक है, अब फिर मैं आ रही हूँ कि फिर जो बता रहे थे आपका फिर जो एडवांस बुक्स मैं पढ़ रही थी, इसमें मैंने कुछ पुराने लेक्चर्स का मैंने सहारा लिया। फॉर एग्जांपल मैंने जो भी जैसे जियोग्राफी के लिए सुदर्शन गुर्जर सर की कुछ यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे फ्री क्लासेस, उसको मैंने देखा। फिर आपको पॉलिटी के लिए भी अतीश माथुर सर की कुछ लेक्चर्स मिल जाएंगे, मतलब या सिद्धार्थ अरोरा सर की कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियो क्लैरिटी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स बस सिटीजन के लिए है, नॉट फॉर पर्सन्स। तो ये जब छोटा छोटा जो चीज़ है ना, जो कि बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, तो ये सब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। फिर मैंने हिस्ट्री के लिए जैसे प्रतीक नायक सर की जो भी फ्री सेशंस है यूट्यूब में या अनअकैडमी के जो भी आप स्पेशल क्लासेस है, उससे मैंने थोड़ा रेफरेंस लेते लेते मैंने खुद अपना फाउंडेशन बनाते गई। ये सब जो मेजर सब्जेक्ट्स है, और इकोनॉमिक्स के लिए भी मृणाल सर के जो भी आपके जो पिलर्स है ना, वो भी जो फ्री में उनके चैनल में है। बहुत पुराना है, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि स्टैटिक चीज़ तो मतलब जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है, वो पुराना हो या नया हो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फाउंडेशन बना रही थी तो मैंने उसका सहारा लिया। फिर ये सब जब हो गया तो ये करते करते बहुत टाइम बीत गया कि फाउंडेशन बनाते बनाते। उसके बाद मेरा मास्टर्स भी ख़त्म होने, मतलब ये मैंने मास्टर्स के दौरान ही मैंने ये सब कर लिया, और फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया ताकि देखने के लिए कि मैं मेरा प्रीलिम्स में क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया कि फिर मैंने मास्टर्स ख़त्म हो जाने के बाद मैंने फिर मेरा जो बता रहे थे स्टेट स्पॉन्सर्ड एक इंस्टीट्यूट है, उस पर मैंने एग्ज़ाम दी, एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई की। मतलब इसमें प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ था, लेकिन वो मेरा एडमिशन टेस्ट में मैंने वेस्ट बंगाल में 200 स्टूडेंट्स को वो लोग सिलेक्ट किए थे, उसमें मैं सिलेक्ट हो गई थी। तो वो मेरे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी था, बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने फिर उसमें ज्वाइन कर गई थी। उसका 10th मंथ का एक प्रोग्राम था। तो इसमें मैंने ट्राई की कि मेरा जो डाउट्स था, मतलब मेरे खुद जब मैं फाउंडेशन तैयारी कर रही थी उसको एड्रेस करने के लिए, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ मैंने नहीं लगाई थी उस वक्त, टाइम नहीं था उतना। तो इसमें वो सब एड्रेस करने के लिए आंसर राइटिंग नहीं की थी, वो सब मैं सोची कि अब मुझे करना है धीरे धीरे। मेरा फाउंडेशन अब मैं स्ट्रांग हो चुका है। मतलब मैं जितना चाह रही थी कि कोचिंग मैं ज़्यादा डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर जाऊँगी, कोचिंग करने से पहले मैं खुद को सेल्फ कोचिंग करूँगी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो तब तक मैं तैयार हो चुकी थी उसके लिए। तो फिर मैंने जब कोचिंग उसमें ज्वाइन की, उस पर मैंने थोड़ा कुछ क्लासेस कर रही थी, और जो भी टेस्ट सीरीज़ वो लोग देते थे, मैं शायद मतलब मेरा ये था कि अगर 0 भी आ रहा है मैं टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगी, ठीक है। और नोट जो बनाना मैं फिर अब से स्टार्ट की, नोट बनाना मैंने शुरू से कभी नोट एकदम डे 1 से डे 0 से मैंने स्टार्ट नहीं की थी। फिर ये जो 2022 में मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ, तो नवंबर दिसंबर इस टाइम से मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट की थी। और तो ये और करंट अफेयर्स, करंट अवेयरनेस ये भी मैंने गैदर करना इस टाइम से स्टार्ट की थी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ लगाना, आंसर राइटिंग थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना, ये 2022 नवंबर दिसंबर इस टाइम मेरा मास्टर्स जब ख़त्म हो गया तब से मैंने स्टार्ट कर रही थी। तो आप देख सकते हो कि मेरा ऐसा कुछ लंबा एकदम जर्नी नहीं था कि मैंने डे 1 से स्टार्ट कर रही थी आंसर राइटिंग या करंट अफेयर्स पढ़ना, ऐसा मेरा नहीं था, ठीक है। अच्छा, और फिर अब और जो भी आपका मान लीजिए जो एनवायरनमेंट, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जो भी माइनर सब्जेक्ट्स था, ये भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे मान लीजिए जब मैं फाउंडेशन कर रही थी उसमें मैंने एथिक्स का खुद थोड़ा सा मतलब कुछ क्लासेस यूट्यूब वगैरह से मैंने खुद कर ली थी। मतलब ऐसे मेरा अप्रोच रखती थी कि दिन में मुझे कुछ टाइम अगर मेजर सब्जेक्ट्स में देना है तो कुछ टाइम मुझे माइनर सब्जेक्ट्स के लिए भी रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जब
हिस्ट्री कर रही थी, तो ऐसा नहीं ना पूरे दिन भर आप हिस्ट्री पढ़ते गए बोर फील कर जाएंगे ना आप। तो उसमें मान लीजिए मैंने सोसाइटी के कुछ लेक्चर्स देख लिए पुराने, या कुछ नोट्स बना लिए सोसाइटीज़ के, फिर ऐसे करके मैंने वो फाउंडेशन खुद जब सेल्फ स्टडी कर रही थी तो बना रही थी, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल जर्नी था। और फिर धीरे धीरे मैं आगे जो भी क्वेश्चन है उसको बताऊंगी। जैसे फिर पूछे है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने क्यों चूज़ किया। देखिए मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था, मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स, तो वो मेरा एक एडवांटेज था। और ये लोग बोल रहे थे कि स्कोरिंग नहीं है, लोग लेते नहीं हैं, लेकिन मुझे फेथ था कि मेरे एकेडमिक ओरिएंटेड स्टडी था इतना दिन, तो और लव भी था उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो मैंने जो भी इतना मिथ, इतना डाउट्स, इसको मैंने उतना सुना नहीं उतना। हाँ, तो मैं यही बोलूँगी कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जब चूज़ कर रहे हैं ना, तो आप पहले देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है। फिर आप देखिए कि उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए आप कितने मटेरियल्स एक साथ गैदर कर सकते हैं, ये सब आप देखिए। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि ऑप्शनल क्या चूज़ करना है। मेरे लिए ये अनकॉमन ऑप्शनल था एग्रीकल्चर, लोग लेते नहीं हैं, लेकिन मुझे बस अपने पे विश्वास था कि मैं कर लूँगी। और मुझे था कि मैंने इतना मेहनत करके ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की, उसको मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। और मेरा जीएस में भी मैं तब ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी। एंड माई मार्क्स वॉज 265 टोटल, 135 इन पेपर 1 ऑप्शनल एंड पेपर 2 में 130, राइट। सो ये था। फिर आपका ऑप्शनल सिलेबस के बारे में ब्रीफ में बताइए, या ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो भी ऑप्शनल है, पहले आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सिलेबस के हर एक टॉपिक को अच्छे से बारीकी से देखिए, और हर एक आपका ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि हर एक टॉपिक के लिए आपके पास मिनिमम 1 पेज का नोट हो जाना चाहिए, ताकि आप 300 वर्ड्स और 250 वर्ड्स आप लिख सकते हो। उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, एकदम सुपरफिशियल नहीं पढ़ना है, ऑप्टिमम डेप्थ में जाना है। और जो भी कंसेप्ट है, क्योंकि ऑप्शनल में थोड़ा आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी चाहिए, तो जो भी आपका कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट है, उसको आप अलग से आइडेंटिफाई कीजिए और आप उसको अलग से तैयारी कीजिए। और मैंने एग्रीकल्चर, ठीक है। अब फिर आ रहा है कि मेंस आंसर कैसे फ्रेम करें। देखिए मैंने जितना एक्सपीरियंस की हूँ मेंस आंसर, मतलब मैंने जितना प्रैक्टिस की हो, जितना समझी हूँ इस एग्ज़ाम को, मुझे लगा कि पहले आप जब आपको क्वेश्चन, पहले आप मेंस के बारे में समझिए। जो पेपर होता है 1 to 3, इसमें क्या हो रहा है कि आपको, हाँ, मेंस में क्या हो रहा है आपको टोटल देखिए 250 का पेपर हो रहा है ना। अब आपको 3 घंटा मिल रहा है, और पहला पार्ट में 10 क्वेश्चन रह रहा है, और उसके बाद पार्ट 2 में भी 10 क्वेश्चन। अब पहला वाला 150 वर्ड्स और नेक्स्ट वाला 250 वर्ड्स। तो आपको पहले टाइम क्या लगना चाहिए, हर एक 10 जो मैंने जो फॉलो की, 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए मैंने 7 मिनट्स अलॉट की थी। और जो 20 मार्कर या 15 मार्कर का जो क्वेश्चन होता था, मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैं उसको 10 मिनट्स में कवर करूँगी। ऐसे आप ऐसे आप अगर स्ट्रेटेजाइज करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका 3 घंटा में आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और आप फर्स्ट ये है टाइम मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट है कि वेन एवर यू आर गेटिंग द क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट आई यूज टू अटेंड द 20 markers, means the 15 marker question, part B, and accordingly I had the strategy in my mind that this part should be completed by around 35 to 40 minutes. If I am not able to complete writing the answers of these questions within that minute, then I should compromise some answers, so that I can complete the paper. Completion of the paper is much more important, because look, it is a game of management, right? You cannot showcase all your knowledge, because this is a vast syllabus and time is very limited. You have to attend all the questions, you have to present well, you have to structure well. So utilize your time wisely. Next, whenever you are looking in a question, try to identify the keywords. For example, there will be some sections where you will directly find, for example in security question, directly this year also directly the syllabus centric question were asked.
sometimes like directly money laundering question are being asked, or for example in governance, social justice, society, and they are asking some basic questions which does not require any specialized knowledge, rather general knowledge should be required, right? So accordingly you can identify that, okay, let me identify that this question, what is the source of this question. First identify this, then identify the keywords, what they have asked, what is the demand of UPSC. Once you understood the demand, then identify the parts. Like in every question you can identify some certain parts. Then also identify the directives, that what they have asked. Means sometimes you will find elaborate, describe, comment in this. So what are the directives? So these you have to do in a very means what can I say, very quickly, right? These identifying the nature of the questions. Once you have identified, then go with the go for writing the answers. What I used to do, I used to mark a round circle in the keyword. Then my strategy was to give the introduction, and for writing the introduction, I used to either write a definition of the keyword, or used to give some for example data or some current relevance if it's applicable in that for that question. I used to give that. Once I am done with the introduction, then for the body portion, I used to give a heading. I used to give a underline or something box like thing, and in the body portion I used to identify, used to write the part wise answer in the part wise, right? In like I have already told you ना that हर एक क्वेश्चन में कुछ पार्ट होंगे आपके, तो आप जब बॉडी लिख रहे हैं तो आप उस पार्ट को सब हेडिंग्स बना के एक एक पार्ट को फिर आप लिखिए. इसमें क्या होगा ना, जो आपको मार्क्स भी देंगे तो वो मतलब पार्ट वाइज आपको मार्क्स डिवाइड कर देंगे ना. ऐसे आप सोच सकते हो. और हमेशा वैल्यू एडिशन की भी सोचिए. मीन्स बॉडी में मेरा ऐसा था कि मान लीजिए जीएस पेपर 1 में, हाँ जो बता रहे थे कि तो उस पर आप एक मैप बना सकते हो, कहाँ कौन सा भक्ति सेंट है उसका लोकेशन आप मार्क कर सकते हो. जियोग्राफी में आप मैप बना सकते हो, वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप, टू प्रेजेंट योर आंसर. और आप ना एकदम यूट्यूब से देखेंगे कि बहुत जल्दी मैप कैसे बनाने का भी बहुत सारे आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगे. तो आप उसको पहले से एकदम आपके टिप में होना चाहिए ये सब फिगर बनाना. फिर आपके पॉलिटी में आप कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कुछ आर्टिकल लिख रहे हो, कुछ जजमेंट्स लिख रहे हो, कुछ केस स्टडीज़. सोशल जस्टिस में जैसे मान लीजिए वल्नरेबल सेक्शन जो है, तो उसको आप पहले डेटा कलेक्ट कर रखिए. फॉर एग्जांपल चाइल्ड, वुमेन, ओल्ड एज, फिर आपका जो दिव्यांगजन हैं, जो आपके एस्पिरेशनल क्लास है, उनके ऊपर से अगर कुछ आपको डेटा पहले से आप कलेक्ट करके रखिए. ये सब फॉर्डर पॉइंट्स आप कलेक्ट करके रखेंगे ना तो आपको अच्छा होगा. मतलब मेंस में आपको सोचना नहीं पड़ेगा. आप डायरेक्ट देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और अकॉर्डिंगली आप इंट्रोडक्शन उसी से स्टार्ट कीजिए, मतलब डेटा से. और आप वैल्यू एडिशन बॉडी पार्ट में भी वैसे कीजिए. फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, कुछ एनेक्डोट दे सकते हैं. मैंने टॉपर्स कॉपीज़ बहुत मैंने फॉलो की. फॉर एग्जांपल जो श्रुति शर्मा मैम की कॉपी, फिर आपका इशिता किशोरी मैम की जो कॉपीज़ थे वो आपको मिल जाएंगे. आप उससे बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए उनको. कैसे वो लोग ने पूरा अलाइनमेंट मेंटेन की है, कि कैसे अपने हेडिंग देकर बॉडी पार्ट अलग से लिखे हैं, कैसे वैल्यू एडिशन किए हैं. तो आप उसको अच्छे से देखते रहिए. फिर कंक्लूशन में मेरा ऐसा था कि आइदर आई विल बी गिविंग अ थॉट और सम कीवर्ड्स. फॉर एग्जांपल विकसित भारत और समथिंग लाइक दिस, SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हो गए, तो उसको मैं दे के थोड़ा एनरिच करती थी. ऐसा मोटा मोटी मैं बोल सकती हूँ कि मेरा आंसर फ्रेम था और प्रेजेंटेशन भी ऐसे मैं करती थी. ओके, देन आपने आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की. मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए मेरे पास बहुत कम टाइम था मेंस के पहले, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था. लेकिन एक बार मेरा प्रीलिम्स जो हो गया ना, मैंने एकदम तो मैंने फिर एकदम बना ली थी कि मुझे 100% देना है मेंस के लिए. तो उस महीने में मैंने जो 4 महीना मिलता है ना प्रीलिम्स के बाद, तो उस पर मैंने क्या की थी कि पहले मैंने मतलब ऐसा था कि मैं पहले सिलेबस कुछ दिन रिवाइज़ करूँगी, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी. चाहे मुझे कुछ भी नहीं आता फिर भी मैं ट्राई करूँगी एटलीस्ट लिखने का, बैठ के 3 घंटा बैठ के लिखने का.
तो मतलब और फिर मैं खुद के आंसर मॉडल आंसर से चेक भी करती थी। जैसे फोरम का जो मॉडल आंसर मुझे मिलता था ऑनलाइन, ऐसे फ्री प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएंगे सब कुछ, उससे आप देखेंगे वो लोग एकदम स्क्वायर करके देते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स, वैल्यू एडिशन मटेरियल्स, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने आपका आंसर को और कैसे बेहतर बना सकते थे। फिर आपको और KSG का भी मैंने कुछ लिख रही थी आंसर्स, तो उसको भी मैंने मतलब खुद मैंने लिखती थी। मैंने जब मैं इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई थी, उन लोग मेरा दिल्ली में भी कॉपी भेजते थे, तो वहाँ से भी मुझे एक आ जाता था रिप्लाई, फीडबैक। और फिर मैं खुद भी मतलब देखिए, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ना कि आपको ना आपके आंसर खुद को भी एक बार चेक करना चाहिए। मॉडल आंसर लीजिए, मॉडल आंसर से आप खुद चेक कीजिए कि मैंने इंट्रोडक्शन में ये डेटा भी दे सकती थी, मैंने बॉडी में इसको ऐसे भी वैल्यू एडिशन कर सकती थी। इससे आपका क्या होगा ना, वैल्यू एडिशन मटेरियल भी आपका गैदर होता जाएगा, और आप खुद इम्प्रूवमेंट्स पता चल जाएगा कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो ऐसे उसी बीच में मैंने की थी। और मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए ना कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी में जैसे आपको मिल जाएगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल में, जैसे स्टेपल अप्रोच या पेस्टल अप्रोच, लाइक whenever you are writing the answers in the body part of it, how you can create the dimension of your own. First thing the political dimension, then economic dimension, then social dimension, then technological dimension. और ये जो पेस्टल अप्रोच है ना, इसको बहुत जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सोशल जस्टिस से कुछ क्वेश्चन आ गया है, कुछ मान लीजिए चाइल्ड या ओल्ड एज का कुछ समथिंग, तो आप ऐसे सोचिए कि उनको पॉलिटिकली क्या रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, क्या इकोनॉमिकली वो लोग फाइनेंशियली स्टेबल है, क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो भी हो रहा है उनके पास पहुंच रहा है, क्या वो लोग सोशली एम्पावर्ड है। तो ऐसे पेस्टल अप्रोच एक हो गया। नेक्स्ट अप्रोच क्या है कि मान लीजिए इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी लेवल, सोसाइटल लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल, मीन्स कुछ आंसर ना आप ऐसे पॉइंट बना सकते हैं कि मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम के बारे में कुछ क्वेश्चन आया है, तो आप ऐसे सोचिए कि ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पे कैसे दिक्कत कर रहा है, कैसे कम्युनिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे इसका इम्पैक्ट क्या है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे इसका इम्पैक्ट क्या है। तो ऐसे आप डायमेंशन बना सकते हैं। फिर और एक डायमेंशन जैसे मैं बताती हूँ इसके ऐसे कि एज स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कुछ इनिशिएटिव आया है, तो वो एक चाइल्ड के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, फिर एडल्ट के ऊपर कैसे, ओल्ड एज के ऊपर कैसे। तो ऐसे आप जो सोसाइटी सोशल जस्टिस का जो आंसर है ना, तो उस पर आप ऐसे बना सकते हैं जो बॉडी पार्ट में डायमेंशन। ठीक है, और फिर है आपका आंसर पॉइंट वाइज लिखिए या फ्लो चार्ट डायग्राम। देखिए मेरा हमेशा अप्रोच ये रहता था कि मैं पॉइंट वाइज या डायग्राम फ्लो चार्ट में ही लिखूंगी, क्योंकि मुझे लगता था उसमें मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। फिर हाँ, आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जब टॉपर्स कॉपी भी देखते रहेंगे ना, जो लोग को बहुत अच्छा मार्क्स मिला हुआ है पहले भी, वो लोग वे फॉरवर्ड अप्रोच बहुत रखते हैं। मतलब आपको अगर पूछा भी नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी आप लास्ट में अगर कुछ क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड दे देंगे कि समथिंग लाइक बॉडी पार्ट में मैं बात कर रही हूँ कि पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद जो भी पार्ट्स पूछा है उनको आप लिखे, फिर देखिए मेजर्स ऑलरेडी टेकन, क्या क्या मेजर्स लिया हुआ है और क्या वे फॉरवर्ड आप सजेस्ट कर रहे हो। तो इसमें आपका पॉजिटिव अप्रोच दिखते हैं। और फिर आप कंक्लूजन में सबको मिला जुला कर एक कीवर्ड के साथ एंड अप कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड आप दे सकते हैं बहुत सारे आंसर्स में, जहाँ पे आपको लग रहा है कि देना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स के कुछ इश्यूज के आ रहे हैं। तो उसके बाद है कि जैसे हाँ यस, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करनी चाहिए, अलग अलग। देखिए मैं बोल दी हूँ कि मुझे लगता है कि आप साथ में कीजिए। फिर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टाइमलाइन देती हूँ। फॉर एग्जांपल जो भी फर्स्ट अपीयर कर रहे हैं ना, मैंने ऐसे सोची, मतलब मुझे जितना पता चला, जैसे मान लीजिए आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो और आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ऐसा, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि 2025 दिसंबर तक आपको मेंस का जो सिलेबस है उसका लगभग तैयारी हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एथिक्स रेडी हो जाना चाहिए। फिर जो भी मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, देन आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब मेंस में ही बस पूछता है। इसके नोट्स
तैयार हो जाना चाहिए बाई December 2025. देन वंस यू आर एंटरिंग इनटू 2026 जनवरी, मिड जनवरी, और आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप मिड जनवरी से टेस्ट सीरीज की तरफ जा सकते हैं। फिर टेस्ट सीरीज मतलब प्रीलिम स्पेसिफिक, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मुझे जितना लगा कि टेस्ट सीरीज थोड़ा 4 महीना मैंने जितना की, मिड ऑफ द 15 जनवरी से मैंने स्टार्ट कर दी थी, एकदम मई में मेरा था, तो उसमें मैं पूरा प्रीलिम स्पेसिफिक पढ़ाई की। ठीक है, तो ऐसा मेरा एक अप्रोच था। फिर मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर गई थी, वो 4 महीना मतलब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की मेंस के लिए, तो ऐसे मेरा ऐसे अप्रोच था। हाँ, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के कितने इंपॉर्टेंट हैं और उसका एनालाइज कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जब प्रीलिम्स का पेपर आप देखिए, आप देखिए उस पर आपको थीम पता चलेगा। कैसे थीम पता चलेगा? मान लीजिए कुछ टॉपिक आपको बहुत रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई के जो इनिशिएटिव्स है, फिर आपके जो फिनेंस कमीशन के जो टर्म ऑफ रेफरेंस है, ये सब बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आप जब 2011 से स्टार्ट कीजिए प्रीलिम्स पेपर चेक करना, और लास्ट ईयर मतलब 2023 तक हर पेपर के ऐसे आप सॉल्व करते जाइए। इसमें आप थीम जब आप एनालाइज करेंगे तो थीम कौन सा थीम बार बार रिपीट हो जा रहा है। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में आप देखेंगे नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरियाज, फ्लोरा फौना बहुत आता है, तो आपका अप्रोच हो जाना चाहिए कि करंट। हाँ, फिर आप ये कर सकते हैं कि उसमें कुछ पैटर्न्स भी मिल जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन वो एलिमिनेट कर रहे हैं, कौन सा ऑप्शन। फिर आप नेक्स्ट है कि प्रीलिम्स के पेपर के जो ऑप्शंस है, हम कभी कभी देखेंगे, मान लीजिए 2017 में एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन था, शायद 2022 या 2020 में वही ऑप्शन से वो लोग क्वेश्चन बना दिए हैं। तो आपका अप्रोच ये भी हो जाना चाहिए कि ऑप्शंस को भी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के कुछ अगर ऑप्शंस वो लोग दिए थे, सेट किए थे, तो वो ऑप्शन के बारे में भी आप पढ़ लीजिए। ये सब। और प्रीलिम्स के लिए हमेशा याद रखिए कि फाइनल में भी आपको ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि शायद 100 में से आपको 20 या 25 क्वेश्चन ही आ रहा है डायरेक्टली 100% श्योर। फिर भी आपका टाइम ज़्यादा करना है, क्योंकि उसमें आपको ना कैलकुलेटेड रेट्स के इंटेलिजेंट केसिंग ये सब चाहिए होता है, क्योंकि पूरा नॉलेज से आप नहीं कर सकते। इसके लिए आप जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे तो प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज मतलब पढ़िए, लिमिटेड पढ़िए, उसको ज़्यादा एप्लीकेशन कीजिए, बहुत ज़्यादा रिविजन कीजिए, ऐसे कीजिए। और मेंस, फिर आता है मेंस का पेपर कैसे एनालाइज करना चाहिए। आप देखिए कि हम लोग कितना पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, लेकिन हर बार करीबन 1 या 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से। तो ये लोग मतलब, और वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कि गिव मी द डिटेल्स ऑफ बैटल ऑफ पानीपत, ऑल दिस थिंग्स। दे आर गिविंग द क्वेश्चन लाइक why the battle of Panipat has happened in Panipat only, not in other places. What is the significance of Panipat? So questions are this type of only, right? So they are looking for your analytical skills, not directly mugging up or other things, right? So accordingly you should go for with the mains question paper. Also look that कुछ ऐसे ना टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल सोसाइटी मेंस के पेपर में, फिर सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी, इस पे आप अच्छे से अगर देखिए तो बहुत स्कोरिंग है ये सब, क्योंकि ये सब जो भी सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है डायरेक्टली वो क्वेश्चन आ रहा है। कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ये एकदम कीवर्ड्स दिया हुआ है सिलेबस में। आपका अप्रोच ये हो जाना चाहिए कि वो हर एक टॉपिक जो आपको पता चल रहा है ना, उसके एक पेज मेरे पास नोट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब इंटरनल सिक्योरिटी में भी जो भी क्वेश्चन आ रहा है, देखिए आप हमेशा 9-10 या 19-20 ये 4 ही क्वेश्चन आ रहा है इंटरनल सिक्योरिटी का, तो 4 क्वेश्चन आपको लिखना है, इतना ज़्यादा पढ़ना है, तो आप ये सोच के पढ़िए, थोड़ा स्ट्रेटजी मेंटेन कीजिए, स्मार्ट अप्रोच रखिए, ठीक है। और फिर है, हाँ, नेक्स्ट है कि मैं बता दी हूँ कि POQ से क्वेश्चंस और थीम रिपीट होती है क्या? हाँ, थीम रिपीट होता है, आपको आप अच्छे से देखिए। जैसे आर्ट एंड कल्चर में मैं बता रही हूँ, जैसे लिटरेचर, वो लोग देखिए बहुत बार लिटरेचर के ऊपर से क्वेश्चन पूछे हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशन की भी अगर आप बात करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन हो रहा है। एक हो रहा है कि बायलैटरल रिलेशन टाइप, एक हो रहा है कि आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, और एक मतलब 4 क्वेश्चन आ रहा है इंटरनेशनल रिलेशन के।
तो ये बायलैटरल रिलेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक कुछ होगा जो हटके होगा, जो उतना मतलब थोड़ा अनकॉमन है। इस बार भी एक आया था, मेरे लिए थोड़ा अनकॉमन था वो। और एक क्वेश्चन भी कुछ इसी के मतलब कोई समिट हो गया, कोई इशू चल रहा है, इसके ऊपर आएगा। तो आप देखिए कि कितना पढ़ना पड़ रहा है और कितना क्वेश्चन आ रहा है उस सब्जेक्ट्स के। और हमेशा एक फ्रेमवर्क पहले से बना के रखिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने इस डायरेक्शन में ही सोचूंगी कि बायलैटरल रिलेशन अगर आएगा तो मैं पहले जो भी पॉजिटिव है दोनों दो कंट्रीज़ के, उसको ऐसे मैं लिखने के ट्राई करूँगी। फिर जो कंस्टेंट्स है उसको ऐसे लिखने के ट्राई करूँगी। और मैं कुछ फ्रेमवर्क्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ कम टू दी इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू में मैं बताना चाहूँगी मेरे 206 मार्क्स आए हैं। तो पहले तो ये कन्फ्यूजन आप एकदम क्लियर कर दीजिए कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, ये कोई इंटरव्यू और जीके टाइप टेस्ट नहीं है, या केबीसी टाइप क्वेश्चन मतलब टेस्ट नहीं है, राइट। और इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि डैफ कैसे बनाएं इंटरव्यू के लिए, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, आपने तैयारी कैसे की, आपके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सब इंटरव्यू के। तो मैं कंबाइंड वे में बताना चाह रही हूँ। देखिए, पहले जो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, डैफ 1 डैफ 2, उसके जो भी कीवर्ड्स है मतलब फ्रॉम योर नेम टू योर स्कूल, यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दी लोकेशन यू बिलोंग टू, फिर आपका जो भी फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर आपके मान लीजिए जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपने जो जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज़ की हुई है उस सब्जेक्ट्स के बारे में, हर ये सब कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कीजिए जितना, और फिर ब्रेनस्टॉर्म कीजिए खुद कि इस सब से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। और आपने जब इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी होते हैं, वो लोग आपसे डैफ लेते हैं और आपके लिए वो लोग एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करके देते हैं। तो आप उसके क्वेश्चन से भी कुछ रेफरेंस ले सकते हैं कि ओके, तो मेरा डैफ से ये क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। लेकिन आप खुद भी ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो नाम था, ठीक है, तो उसका नाम था ब्रतती, इसका मीन्स है क्लाइंबर। तो मैंने ऐसे सोची थी कि ओके, तो दे में फर्स्ट ऑफ ऑल दे में आस्क माय मीनिंग ऑफ माय नेम बिकॉज इट्स अनकॉमन नेम। सो नेक्स्ट दे में आस्क मी दैट what is the difference between climber and creeper. Then if they want to give me, if they want to test my pressure handling capacity or anything, then they may ask me that whether do you think that you are a social climber or all these things. तो मेरे माइंड में मैं हमेशा क्या नेगेटिव क्वेश्चन भी मैं सोच के रखी थी कि मेरे जो मतलब कहाँ से वो लोग मतलब मुझे स्ट्रेस टेस्ट में भी मतलब टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ही पता है कि आपके जैसे मैं एग्रीकल्चर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, तो उस टाइम कितना इश्यूज आ रहे थे। सोचिए कि फार्मर्स प्रोटेस्ट था 2020 फार्म बिल के ऊपर, फिर अभी भी फार्मर प्रोटेस्ट चल रही थी, फिर डबलिंग फार्मर्स इनकम के लिए कुछ इश्यूज है, फिर एमएसपी इश्यूज है, उसके बाद आपके जो जैसे मतलब ऐसे जो भी इश्यूज है एग्रीकल्चर के, हाँ, फिर जीएम मास्टर्ड हो गया। तो ये सब इश्यूज के बारे में मैं पहले मेरा मेंटली प्रिपरेशन मैं कर रही थी। उसके बाद तो पहला है कि आपने कीवर्ड अच्छे से आइडेंटिफाई कीजिए, उसको एकदम डिटेल, जितना डिटेल हो सकते हैं उस पर आप खुद रिसर्च कीजिए, और जो भी आप डैफ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं तो वो लोग जो क्वेश्चन मटेरियल आपको प्रिपेयर करके दे रहे हैं उससे भी आप रेफरेंस लीजिए। सेकेंड, आप सोचिए कि किस टाइप का क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपिनियन टाइप क्वेश्चन हो सकता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सब क्वेश्चन में आपको हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है। कैसे, मान लीजिए आपको वो लोग कुछ ऐसे बता दें कि हाँ तुम्हारे स्टेट में तो ये प्रॉब्लम है, तो आप पहले उसको डिनाई मत कीजिए कि नहीं कुछ नहीं है, सब एकदम अच्छा है। ऐसा भी मत कीजिए कि एकदम फ्लडी है कुछ, और ये भी मत कीजिए कि हाँ सब खराब है, कुछ अच्छा नहीं है, ऐसे भी नहीं। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है कि हाँ, और फिर आप एक पॉजिटिव नोट से ख़त्म कीजिए कि आपका क्या सॉल्यूशन है। आपका आंसर हमेशा सॉल्यूशन सेंट्रिक भी होना चाहिए। तो फर्स्ट एक्नॉलेज द इशू, देन give the current relevance, what measures they are taking at the present moment, and then give your own solution also, right? उसके बाद आप जो भी जीएस का जो मेंस का तैयारी कर रहे हैं ना, तो जो भी डेटास अपने कलेक्ट किए हुए हैं उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, सो दैट यू कैन सब्सटैंशिएट योर आंसर इफ इट रिक्वायर्ड।
या कुछ जीएस का जो कंसेप्ट है उसको भी आप थोड़ा गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद जो 7th एंट्री है डेफ में, आप डेफ 2 में देखेंगे 7th एंट्री में हॉबीज़, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, लीडरशिप आपने कभी कहीं दे चुके, मतलब दिए हुए हैं या नहीं, ये सब पूछते हैं। उसको आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर मान लीजिए आपका कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड हॉबीज़ है, सिंगिंग या रिसाइटेशन या पोएम राइटिंग, तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी मानिए। अगर आपको परफॉर्म करने के लिए भी बोल रहे हैं तो आप हेजिटेट बिल्कुल नहीं कीजिए, उसको अपॉर्चुनिटी लीजिए कि आपको कितना, मतलब आपको आपके पोटेंशियल जो भी है उसको शोकेस करने का मौका मिला है, आप ऐसे देखिए। ठीक है, तो 7th एंट्री को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और जैसे मान लीजिए कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है कि आपके मान लीजिए कुछ रायट हो रहा है या कुछ ये सब कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कैसे वहाँ पे तो कैसे आप हैंडल करेंगे या क्या आपका अप्रोच रहेगा, तो उस पर आप कुछ कीवर्ड्स हमेशा तैयारी करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन, या मान लीजिए कुछ मैं पर्सनल जो इन्फॉर्मेटर्स होता है ना, मतलब जो मैं कुछ रखूँगी वहाँ पे, या सो दैट जो कि मेरे लिए बहुत, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं जो भी पब्लिक होंगे, पब्लिक इन्फॉर्मर्स मैं रखूँगी। तो ये सब जो कीवर्ड्स, फर्स्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन, जो भी आप न्यूज़पेपर से भी आपको मिल जाएगा कभी कभी, तो वो सब आप कीवर्ड्स इकट्ठा कर सकते हैं। और बाकी मैंने जो इकट्ठा की थी मैं धीरे धीरे मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूँगी। फिर वुमेन सेंट्रिक जो इशूज़ है उसको आप बहुत अच्छे से देखिए। फिर कंट्रोवर्शियल जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ है, फॉर एग्जांपल मैरिटल रेप हो गया, सेम सेक्स मैरिज, देन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो जिसके बारे में कुछ दिन पहले भी चर्चा हो रही थी, फिर ट्रिपल तलाक बैनिंग, 370 आर्टिकल 370 इशूज़, तो ये सब जो कंट्रोवर्शियल इशूज़ है इस पे आप अपना एक ओपिनियन बनाइए और इसको आप एक पेज में लिखिए। इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, आपने क्या आपका क्या इस पे ओपिनियन है। तो आप ये सब कंट्रोवर्शियल कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को एक जगह गैदर कीजिए और आपका ओपिनियन बनाइए उस पर। नेक्स्ट है कि जो भी जब आपका इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट है, उसके 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से एकदम फिंगर टिप में रहना चाहिए। और स्पेशली लास्ट वीक उस टाइम, मतलब आपका जब इंटरव्यू है उसके जब आसपास में जो भी चल रहा है मेजर नेशनल इशू, उसको बहुत अच्छे से आपको देख लेना चाहिए। और जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाएंगे आप, और दिल्ली एडिशन, और जो भी मतलब जितना हो सके उस दिन का जो भी न्यूज़पेपर हो सकते हैं पढ़ के जाइए। फिर है कि और माइंडसेट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस दिन आपका इंटरव्यू है आप ये सोचिए कि ये कॉन्वर्सेशन है, आपको कुछ सीनियर सिविल सर्वेंट्स के साथ बात करने का मौका मिला है, मतलब आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। और कूल काम कॉन्फिडेंट रहिए, खुद को मोटिवेट खुद करते रहिए। और मतलब आप ये मत सोचिए कि मतलब वो लोग कोई मतलब वो लोग आपको सुनने के लिए ही बैठे हैं, तो आप बहुत आराम से आपका आंसर दीजिए। अगर जो और ऑनेस्टी मेंटेन कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप ब्लफ मत कीजिए, आप मतलब आप एडमिट कीजिए कि सर सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, हाउएवर आई विल ट्राई टू लुक इनटू इट, इन दिस वे यू कैन मैनेज, राइट। तो ऑनेस्टी, वो लोग ऑनेस्टी देख रहे हैं। बैलेंसिंग ऑफ योर ओपिनियंस, स्ट्रेस टेस्ट, अगर वो लोग आपको कुछ प्रेशर में भी रख रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिवली लीजिए। और कंसिस्टेंसी ऑफ आंसर, ये भी वो लोग चेक करते हैं, ठीक है, कि आपको शायद एक क्वेश्चन पूछा है उसी के रिलेटेड अगर आपको 10 मिनट्स के बाद और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप अलर्ट रहिए कि क्या क्वेश्चन वो लोग फिर तो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करना चाहिए, आपके आंसर्स में दिखना चाहिए। तो ये सब सम फ्यू टिप्स है इंटरव्यू के लिए। ओके, नेक्स्ट है कि हाँ, बुक लिस्ट मैंने एक ऑलरेडी बना चुकी हूँ, सिलेबस के साथ कैसे बुक लिस्ट को लिंक करना है, तो मैं उसको मेरे टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी, तो आप उसे देख सकते हैं। और इन जनरल जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट सब लोग फॉलो करते हैं वो ही मैंने भी फॉलो की थी, ठीक। ओके, नेक्स्ट है कि हाँ, यदि आपको फिर से यूपीएससी देने का मौका मिले तो आप क्या करना नहीं चाहोगे। शायद मैं मेंस के लिए और आंसर राइटिंग थोड़ा आगे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करती है, क्योंकि मेरा टाइम कंस्ट्रेंट हो गया था, तो ये इसका मैं ध्यान रखती शायद। और फिर आपके हाँ
हाँ, नोट मेकिंग स्ट्रेटजी, इसमें भी एक क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगी। देखिए, नोट क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि ताकि आप एग्ज़ाम के पहले बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो, राइट। और नोट आपका ऑर्गेनाइज, फिर फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, तो ऐसे करके आ रहा है। फिर GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन। फिर आपका GS3 में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इन दिस वे। GS पेपर 4 अलग, ए से अलग, फिर क्वालिफाइंग पेपर्स के लिए अलग, और ऑप्शनल पेपर 1 पेपर 2 के लिए, ठीक है। और तो मेरा नोट भी वन नोट में मैंने ये सब टैब बना लिए थे, ठीक है। बना ली थी मैंने वन नोट में, और अकॉर्डिंगली आप कुछ देखेंगे कि कुछ मतलब जैसे जो भी माइनर टॉपिक्स है ना, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इसके कीवर्ड्स जो भी है बहुत मतलब क्लियर करके दिए हुए सिलेबस में, वो सब कीवर्ड्स के एक पेज मेरे पास नोट होता रहता था। और लेकिन कुछ ऐसे है, जैसे मान लीजिए जियोग्राफी का कुछ डिफाइंड सिलेबस नहीं है। GS पेपर 1 जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी का जो सिलेबस है वो एकदम डिफाइंड नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, आप वो थोड़ा वेग लगेगा आपको टॉपिक, तो उसको आप माइक्रो टॉपिक्स में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जियोग्राफी के लिए NCERT के जो कंटेंट दिए हुए हैं ना, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, ऐसे करके, तो आपका नोट भी उसी कंटेंट के अनुसार बनाइए, ठीक है। या मान लीजिए आप कभी कुछ क्लास कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको कुछ क्लास के शेड्यूल मिल जाएंगे, तो वहाँ पे भी आप माइक्रो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली यू ऑल्सो प्रिपेयर योर नोट्स, राइट। और एक चीज़ नोट के लिए मैं बताना चाहूँगी कि वैल्यू एडिशन, अगर आप डिजिटल नोट बना रहे हैं, या मान लीजिए आपने मतलब कुछ पेपर नोट्स बना रहे हैं, तो हमेशा अपडेट करते रहिए। एक अपने फोल्डर बना लीजिए, या वन नोट में जैसे मैंने बोली वैसे फोल्डर बना लीजिए। वैसे आपने फोल्डर के अंदर टॉपिक, या मतलब फॉर एग्जांपल GS पेपर 2, फिर उसके अंदर में होगा मेरा इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी सिलेबस के दिए हुए हैं, बायलैटरल रिलेशन, फिर आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके जो भी सिलेबस के एकदम टॉपिक मैंने फिर ऐसे एक पेज करके मैंने बना के रखी। फिर मान लीजिए बायलैटरल रिलेशन में मेरे और भी टैब्स बना हुआ है मेरे नोट्स में। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया नेपाल, नेबरिंग कंट्रीज़, फिर एक्स्ट्रा नेबर जो भी है हमारे, फॉर एग्जांपल इंडिया मिडल ईस्ट, इंडिया ईरान, फिर इंडिया सेंट्रल एशिया, ऐसे करके। तो ऐसे मैंने मतलब टैब्स करके बना के रखी हुई है। तो मतलब वन नोट में मैं अगर मेरा वन नोट खोलूँगी तो उस पर पहले GS पेपर 1 2 ऐसे करके है, तो 2 GS पेपर 2 में फिर इंटरनेशनल, मतलब जैसे सिलेबस में दिया हुआ है वैसे ही पॉलिटी, गवर्नेंस, IR। फिर IR में अगर आप ओपन करेंगे तो जो भी सिलेबस में डिटेल में दिया हुआ है टॉपिक्स, वो टॉपिक्स लिखा हुआ है, और वो टॉपिक्स का मैंने फिर माइक्रो टॉपिक्स बना के एक टैब बना के रखी हूँ। अब मेरा क्या अप्रोच था, मान लीजिए इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश, ये सब मैंने स्टैटिक के जो भी है, मान लीजिए जो भी हिस्ट्री थोड़ा है, या मान लीजिए कुछ इश्यूज़, फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश में जो भी इश्यूज़ है जो स्टैटिक में काम आता है, फॉर एग्जांपल लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट इश्यूज़, फिर आपका कुछ रिवर प्रोजेक्ट हो गया, कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स हो गया, इसके बारे में मैं एकदम जो स्टैटिक में मैं किसी कहीं से मैं पढ़ रही हूँ, कहीं से मैं स्टैटिक में कुछ क्लास नोट्स से पढ़ रही हूँ, या मान लीजिए कुछ मैं बुक पढ़ के, वो पहले मैंने स्टैटिक तैयारी करके रखी हूँ। फिर मैं जब करंट अफेयर्स पढ़ूँगी तो उसको मैंने सब्सटैंशिएट करूँगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई हमारे ऑनरेबल जो मिनिस्टर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कभी विजिट किए हुए हैं बांग्लादेश में, या बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट किए हुए, कुछ डायलॉग्स हुए, तो वो डायलॉग्स में अगर कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो मैं फिर मेरे वो नोट्स में उसको अपडेट करूँगी कि इस दिन में मैं डेट दूँगी और उसको वहाँ पे अपडेट करूँगी कि दिस न्यू प्रोजेक्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन दिस वे, राइट। सो मेरा स्टैटिक ऐसा बना हुआ रहेगा, और फिर धीरे धीरे मैं जब करंट अफेयर्स पढ़ूँगी या मंथली मैगजीन से उसको रिवाइज करूँगी तो मैं अपना सब्सटैंशिएट भी वैसे करते जाऊँगी। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी हूँ। और बाकी मैंने नोट्स मेकिंग जो भी मैंने नोट्स है उसको मैंने जैसे बोला वन नोट के, मैं ट्राई करूँगी कि
कभी उसका एक स्क्रीनशॉट या कुछ भेज देने के लिए टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल में या इंस्टाग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन कैसे करें। वैल्यू एडिशन मैंने बता दी हूँ कि आपने जब कुछ मतलब डेटा या चार्ट आप पहले से सोच के रखिए कि फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 1 में मैं कहाँ वैल्यू एडिशन कर सकती हूँ, कुछ मैप्स बना सकती हूँ। जीएस पेपर 2 में मैं कुछ जजमेंट्स, कुछ केस स्टडीज़, कुछ आर्टिकल्स पॉलिटी के आंसर्स में दे सकती हूँ। सोशल जस्टिस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे सकती हूँ, कुछ डेटा। फॉर एग्जांपल चाइल्ड, अब चाइल्ड रिलेटेड जो चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ये सब के लिए एक एक मतलब 2-3 डेटा, अब डेटा कलेक्टर मत बन जाए, मतलब 2-3 रिलेवेंट डेटा आपके पास रखिए। और आपका माइंड सेट ऐसा हो जाना चाहिए कि जीएस पेपर 2 में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं ट्राई करूँगी उस डेटा को याद करके वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर जीएस पेपर 3 में आएंगे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में आपके कुछ ग्राफ्स हो गया, कुछ एग्रीकल्चर का कुछ डेटा हो गया। एग्रीकल्चर का भी क्वेश्चन आता रहता है, तो एग्रीकल्चर का कैसे कर सकते हैं, जैसे आप जब मृणाल के जो 3 नंबर पिलर है ना, उसमें देखेंगे आप ऐसे दिया हुआ है इनपुट्स एंड आउटपुट अप्रोच। मीन्स इनपुट में एग्रीकल्चर में क्या क्या लगता है, सीड, फिर लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी। फिर आउटपुट में क्या क्या चैलेंज आता है, मार्केटिंग में, स्टोरेज में, डिस्ट्रीब्यूशन में। सो आप ऐसे ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। और इनपुट में जो भी मैं बताई कि सीड रिलेटेड एक डेटा, फॉर एग्जांपल सीड रिप्लेसमेंट रेशियो इज 15% विच इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न। फिर लैंड रिलेटेड कुछ डेटा, फिर लेबर, फॉर एग्जांपल more than 50% or I think it's 47.8% people in India are engaged in the agriculture. फिर लेबर में मान लीजिए फेमिनाइजेशन इन एग्रीकल्चर इज ए इशू, तो 10th एग्रीकल्चर सेंसस से आप कुछ डेटा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12.8% ऑफ द फीमेल आर हैविंग ओनली लैंड इन देयर नेम। फिर आपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक आता है, तो उस पर आप एक जगह पे नोट बना सकते हैं कि क्या क्या रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुआ है। फिर आउटपुट में जाइए कि मार्केटिंग में क्या क्या चैलेंज है, इसका लिए एक डेटा। ऐसे करके आप पहले फॉर्डर पॉइंट्स कलेक्ट करके रखिए। तो ऐसे आप वैलिडेशन कर सकते हैं। और जब आप आंसर लिख रहे हैं, मैंने जो पहले भी बोली हूँ, आप जब मॉडल आंसर से खुद के आंसर चेक कीजिए। और मॉडल आंसर में आपको कुछ वैलिडेशन के मटेरियल, फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स, एनेक्डोट्स, थॉट्स, कीवर्ड्स, ये सब आपको मिलता रहेगा। उससे आप रेफरेंस लीजिए और आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल आप खुद तैयारी करते रहिए। फिर है कि आप सोशल मीडिया के यूज़ कैसे करें। देखिए मैंने बहुत कटआउट थी इस दौरान में, बस टेलीग्राम, व्हाट्सअप ये सब में यूज़ करती थी। टेलीग्राम में आप बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आप एकदम मतलब ये एकदम समुंदर जैसा है ना, पूरा सिलेबस, इतने सारे रिसोर्स। तो आपको इंटेलिजेंस, आपके जो खुद इंस्टिंक्ट्स है उसको यूज़ करना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि आपको ज़्यादा मटेरियल के पीछे एकदम नहीं भागना चाहिए। लिमिट करके रखना है आपके रिसोर्स को। और कम पढ़िए लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ये एक मंत्र है, राइट। एंड फिर है आपका यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन। देखिए ये मतलब ये जो भी डाउट्स है ना, कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऑनलाइन नोट बनाए या ऑफलाइन, या ऑनलाइन तैयारी की करना चाहिए या ऑफलाइन, इसका कोई येस और नो में आंसर नहीं होता है। इसमें आपको मध्यम मार्ग चुनना है। आप खुद को पूछिए, खुद स्वॉट एनालिसिस कीजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो आप एक पेपर लीजिए, आप खुद देखिए कि जो भी आपके पास ऑप्शन है, ऑनलाइन में आपके पास क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ऑफलाइन में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, फिर क्या दोनों में क्या क्या चैलेंज है। अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर डिसीजन, राइट। ये आप कर सकते हैं। इसका कोई आंसर ऐसे नहीं होगा, जो आपको सूटेबल लगे आप अच्छे से सोचिए फिर डिसीजन लीजिए। फिर है आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है। देखिए मैंने मेरे पूरे प्रिपरेशन मतलब बस इंटरव्यू के पहले ही मैंने दिल्ली गई थी। मैंने उसके पहले मतलब मॉक इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन मैं दिल्ली नहीं गई थी, लेकिन दिल्ली से मैंने कनेक्शन रखी थी। मुझे ये पता था कि कौन सा मटेरियल अच्छा है। ये मैंने, आप जितना ज़्यादा एग्ज़ाम के बारे में रिसर्च करते जाएंगे, पूछते रहेंगे, आपको पता चल रहा है। लेकिन मैंने फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, ओनली मॉक इंटरव्यू देने के टाइम मैं वहाँ पे गई थी, ठीक है।
तो फिर आपका है प्लान भी रखना चाहिए या नहीं। देखिए मेरे पास था, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन जर्नी है। आपको ये सोचना चाहिए कि प्लान भी रखिए। प्लान भी आपको मोटिवेट करना चाहिए, मतलब क्योंकि हम ये इतना लंबा जर्नी है ना, कभी कभी हम लोग बहुत सेल्फ डाउट करते रहते हैं कि इतना दिन लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लोग ये सब कह रहे हैं। तो लेकिन आपका एम एकदम जो लक्ष्य है वो यूपीएससी अगर है तो वो एकदम आप रखिए, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए अगर आपको प्लान बी का ज़रूरत होता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे का फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होता है, फैमिली इश्यूज होती है, तो उस अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। रिवीजन कैसे करें? देखिए रिवीजन का मैं बोलूँगी कि आप जो नोट्स बना रहे हैं, खुद का नोट्स, उसको आप रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप खुद के नोट्स को रिवाइज़ नहीं कीजिएगा ना तो वो कुछ दिन बाद डेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप नोट्स को मान लीजिए आप छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ाई कीजिए, और मतलब 3 दिन ऐसे करके फिर आप नोट्स को रिवाइज़ कीजिए खुद के। फिर जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे तो टेस्ट सीरीज़ के पहले खुद के नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, और जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ देते रहेंगे तो टेस्ट सीरीज़ का फिर जब आंसर आप एनालिसिस करेंगे तो उससे भी आप रिवाइज़ कर लीजिए ऐसे करके। और जब एग्ज़ाम के जैसे मान लीजिए अभी प्रीलिम्स आ रहा है ना, तो अभी जैसे अभी 28 मई है, अब 16 जून है प्रीलिम्स। जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग धीरे धीरे टेस्ट सीरीज़ का जो एक टेम्पो था वो थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, रिविजन की तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए। जब थोड़ा फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरियाज, वेटलैंड जो एनवायरनमेंट रिलेटेड है, फिर मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ डिफेंस के जो प्रोग्राम्स है, या कुछ इसरो या नासा के कुछ प्रोजेक्ट्स है, इसको जो भी याद करने वाला चीज़, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का जो क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी आपने कुछ लिटरेचर, किसी का कंट्रीब्यूशन, कोई बैटल का इवेंट, ये सब जो याद करने वाला चीज़, ये सब लास्ट के कुछ दिनों के लिए रखिए। और सी सेट के लिए मैं बोलूँगी कि एकदम हल्के में मत लीजिए, और सी सेट में आपने कंप्रीहेंशन को इक्वल इम्पोर्टेंस दीजिए। और पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका स्ट्रेंथ कहाँ है। जैसे मेरा था ऐसा कि रीजनिंग, मतलब मैं शुरू से ट्राई करूँगी और रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करना था। मैथ्स अगर जो भी जितना मुझे आ रहा है मैं उतना ही अटेंड करूँगी, और कंप्रीहेंशन को भी मैंने मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस दी थी। और मैंने जैसे पिछले बार बहुत टफ आया था, लेकिन मैंने शायद एक ही क्वेश्चन छूटा था मेरा कंप्रीहेंशन का, बाकी मैंने कंप्रीहेंशन का सब की थी और लगभग मेरा सही गया था। तो ये मेरा था। और आपका जो हाँ ऐसा था कि आपकी तरफ से कुछ टिप्स ऐसे, देखिए फर्स्टली टेस्ट सीरीज़ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मैं बताना चाहूँगी कि आप एकदम मतलब टेस्ट सीरीज़ में एनरोल तो कर जाते लेकिन एग्ज़ाम देने नहीं जाते, ये सब गलती आप मत कीजिए। अगर आपको डर भी लग रहा है तो आप बैठिए, क्योंकि और मार्क्स को लेकर एकदम सोचिए मत। टेस्ट सीरीज में अगर 0 भी आए तो भी सही, लेकिन वो जो बैठने की आदत है ना उसको आप कंटिन्यू कीजिए। 2 घंटा एक जगह बैठ के सॉल्व करना, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, इसमें आपको ब्रेन हैबिचुएट हो जाता है। फिर मेंस के लिए भी आप प्रैक्टिस कीजिए, आंसर राइटिंग, खुद के आंसर को चेक कीजिए। इंटरव्यू के टाइम में भी सेम, जितना करीबन मैंने 25-30 बस ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज़ दी थी टू ओवरकम द नेचुरल फियर, टू गेन सम कॉन्फिडेंस। तो प्रैक्टिस में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान हमेशा रहता था। हाँ ठीक है, तो ये एक सलाह मेरी तरफ से होगा। नाउ मैं कुछ एड्रेस करूँगी क्वेश्चन जो अभी आप लोगों ने पूछा है। जैसे हाँ, व्हाट शुड बी दी आवर माइंडसेट फॉर प्रीलिम्स, राइट। फर्स्टली देखो, मेरा ऐसा था कि मैं जब प्रीलिम्स में मतलब प्रीलिम्स के पहले दिन, जब पहले रात में ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि जितना मेरा करना था मैंने कर लिया हूँ। और जब मैं मतलब एग्ज़ाम अगर मुझे पेपर मिल रहा है तो मेरा ऐसा था कि मैं ऐसे सोच रही थी कि शायद मुझे 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 3 नंबर, फिर भी मैं घबराऊंगी नहीं। ये आप खुद मोटिवेट करते जाइए, क्योंकि क्या पता शायद नेक्स्ट पार्ट में आपका अच्छा हो जाएगा, शायद आपके सेट में पहले वाला क्वेश्चन टफ आया हो, तो आप एकदम काम रहिए, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट जब देते रहेंगे ना, ये आपको प्रैक्टिस तब करते रहना है। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि आपको शायद पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको खुद को ये मोटिवेट करते रहना कि ठीक है अभी भी इतना क्वेश्चन बचा है और मैं कर लूँगी ऐसे करके। और सीसेट में भी सेम अप्रोच रखिए। फिर मेंस में भी मतलब मेरा ये था कि मैं हर क्वेश्चन अटेंड करूँगी, शायद कुछ क्वेश्चन मेरा कंप्रोमाइज़ हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे मतलब मैं अटेंड करूँगी, ठीक है। तो ये माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर आपने पूछा है कि हाँ, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। मैंने नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी तो मैंने जो भी मैंने फॉलो की थी उसको बता दी थी। तो और शॉर्ट नोट्स देखिए, मैं कुछ आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में आप जो चेयरपर्सन्स जो भी है ना, जैसे गवर्नर, उसके साथ आप प्रेसिडेंट, एक साथ इसको आप कंपेयर करके छोटा करके एक नोट्स बना सकते हैं। फिर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जितने भी है इसके आप चार्ट बना सकते हैं। एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद चार्ट बना के जो भी आपके अलाउंस है, सैलरी, पेंशन्स, फिर आपने रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट सर्विस एलोकेट हो सकता है या नहीं, इसका एक कभी कभी आपको कुछ इंस्टीट्यूट्स के भी रेडीमेड मटेरियल मिल जाएंगे। तो ये सब आप शॉर्ट नोट्स करके रखिए जो कि आपको बहुत हैंडी लगते हैं। फिर मान लीजिए जियोग्राफी के लिए जो रिवर्स है, तो उसका मैंने सुदर्शन सर की जो भी आती है ना फ्री क्लासेस, उसको मैंने की थी। फिर एनवायरनमेंट में भी जब प्रोटेक्टेड एरियाज आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स आप हमेशा मैप से कीजिए। और ऐसे आप ऑब्जर्व कीजिए कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट किस तरफ से कौन से नेशनल पार्क का अलाइनमेंट है, कौन से नेशनल पार्क के पास से कौन सी रिवर गुजरी हुई है, ऐसे आपको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, ठीक है। फिर किसी ने पूछा है कि मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए। ये ना मतलब कुछ आपके होंगे जो कि आपको समझते हैं। जैसे मेरे लिए मेरी मम्मी थी, मैंने मम्मी से हमेशा बात करती रहती थी। बहुत कम लोग हैं, फिर भी क्वालिटी है, ऐसे रखिए। ज़्यादा ध्यान मत दीजिए किसी के नेगेटिव बात। और सबसे बड़े मोटिवेटर आप खुद हैं, खुद के। तो आप सेल्फ मोटिवेशन भी बिलीव कीजिए। और जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनसे बातें करते रहिए। जो भी आपके अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे बातें करते रहिए। फिर आपके किसी और ने पूछा है, और मेरे लिए जैसे मेरे कुछ प्रोफेसर हैं उनसे मैं बातें करती रहती थी, थोड़ा मुझे साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल जाता था। तो ये आप कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस होता है, ये देखिए। आप ये जब आप मॉक इंटरव्यू में भी आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ना, तो आप ऐसे सोचिए कि ये फाइनली है। मॉक इंटरव्यू में एक्चुअली क्या होता है, आपको आपके डेप्थ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको आइडिया मिल जाता है। मैंने मेरे मॉक इंटरव्यू ऐसे प्लान करके रखी थी कि मैं पहले एक बार जनवरी में दिल्ली गई, तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यू अटेंड करने की ट्राई की ऑफलाइन। तो उस पर मेरा ये टारगेट था कि मेरे डेप्थ से क्या क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, इसको मैं देख रही थी। फिर मैंने एक ब्रेक ली। फिर मैंने मेरा जो गलती वो लोग मुझे बताया, जो शॉर्टकमिंग्स थे, जो भी जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे और भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसको मैंने फिर मेरे होम टाउन में आके मैंने प्रिपेयर की। फिर फाइनल के 5-6 दिन पहले मैंने फिर दिल्ली गई। उस पर मैंने फिर बस 2-3 इंटरव्यू दी कि मेरा जस्ट टू चेक दी लेवल ऑफ माई इम्प्रूवमेंट्स। तो मैंने ऐसे फेज़ में मेरा मॉक इंटरव्यूज प्लान की थी। और मतलब मेरे लिए यूपीएससी जो फाइनल इंटरव्यू था लगभग सेम ही था। मतलब क्योंकि मैंने इतना सारा मॉक इंटरव्यू दी थी, तो मुझे आइडिया हो गया था कि मेरे डेप्थ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे मुझे थोड़ा स्ट्रेस टेस्ट वो लोग कर सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत वो अच्छा मेरा मेमोरी है, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। सिमिलर है क्वाइट एक्सपीरियंस, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, राइट। टॉप एक जन जैसे पूछा है कि एनसीईआरटी 6 to 12 नेसेसरी है या 11-12 से हो जाएगा। देखिए, मेरा ये अप्रोच था जब मैं शुरू कर रही थी एकदम बिगिनिंग स्टेज में, मैं 11-12 पहले पढ़ रही थी, ठीक है। उसके बाद बहुत कम टाइम में 10 से मतलब पीछे जा रही थी, 10, 9, 8, 7 से। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जियोग्राफी आपने 11th की किताबें पढ़ी, 11th की किताब में आपको क्लाइमेटोलॉजी बहुत डीपली पता चलेगा, लेकिन फिर आप क्लाइमेट के टॉपिक को ढूंढिए कि कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल इन 9th एनसीईआरटी यू विल गेट, तो वहाँ पे बस आप टॉपिक को रिवाइज कीजिए,
फिर 6-7 के या जो जूनियर क्लासेस के एनसीईआरटी है ना, उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस दिए रहते हैं, डू यू नो करके, वो बॉक्स को भी आप अच्छे से देखिए। उस पर कुछ कुछ जैसे एग्रीकल्चर के कुछ टर्मिनोलॉजीज, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको मिल जाएंगे वो सब बॉक्स में। तो जो जूनियर क्लासेस के एनसीईआरटीज है उसको मतलब एक बार बस गो थ्रू कीजिए, क्योंकि आपको ताकि फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो जाए। लेकिन बहुत कम टाइम, मतलब उस पर एकदम ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं 11-12 पहले पढ़ूंगी, फिर 11-12 के कंटेंट्स के जो भी टॉपिक्स मुझे मिल रहे हैं वो टॉपिक्स को मैंने बस ढूंढ के पीछे जो भी जूनियर क्लासेस के एनसीईआरटी है उससे मैं कवर करूँगी। मेरा ये अप्रोच था, राइट। उसके बाद किसी ने पूछा है कि हाँ, स्ट्रैटेजी फॉर 2027 में बता चुकी हूँ कि मान लीजिए अब जिस साल की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए 2027 के अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2026 के दिसंबर तक आप ट्राई कीजिए कि आपका मेंस का सिलेबस जो भी मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स है उसके नोट्स तैयारी हो जाना चाहिए। Once you are entering into January of 2027, make your mind in that way that by the mid of the January you will be entering into test series and fully prelims preparation. If you are a first attempt, you are giving your first attempt, right? So अच्छा, बुक लिस्ट मैं ना बुक लिस्ट एकदम जो भी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है उसको मैं फॉलो की थी, और बाकी मैंने एक बनाई हूँ, मैं टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूँगी एकदम सिलेबस से लिंक करके बुक लिस्ट, राइट। देन हाउ टू प्रिपेयर बेसिक लेवल, ग्रेजुएशन के साथ कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं ना तो आपने जो फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन के टाइम आप क्या कर सकते हो, जो भी बेसिक बुक्स है उसको आप गो थ्रू कीजिए। फिर आपने मतलब करंट अफेयर्स पढ़ना भी थोड़ा हैबिट रखिए, ऐसे करके साइड बाय साइड एकदम फुल ग्रेजुएशन की तरफ भी आपको फोकस देना चाहिए। मतलब डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट। फिर इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर चुकी हूँ, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए मैं अलग से कुछ बना दूँगी, यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं होगा, टाइम भी बहुत जा रहा है। और हाँ, यूपीएससी मेंस से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए यूपीएससी मेंस के जो भी क्वेश्चन पेपर है आप उससे ना थीम देखिए, कौन सा थीम बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, और जो भी ऑलरेडी आ चुका है उससे एक लेवल आगे जाके सोचिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया ना कि आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे लिटरेचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप जो भी लिटरेचर ऑलरेडी नहीं पूछे हैं, फॉर एग्जांपल आई थिंक वैदिक लिटरेचर दे हैवंट आस्क्ड, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर। फिर कुछ ऐसे टॉपिक होंगे, फॉर एग्जांपल ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, देन सोसाइटी के मैंने बोले, तो ये सब जो भी टॉपिक्स है इसको आप अलग से तैयारी कर लीजिए, इससे एकदम डायरेक्ट आपको इस बार भी जैसे देखिए जी पेपर 3 में टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर आ गया था, तो और इंटरनल सिक्योरिटी के भी बहुत कॉमन क्वेश्चन आ गए थे कि पूरे इंडिया में क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ है, ठीक है। तो ये सब I think I have addressed most of the questions, and if you have any doubts then you can approach me through my Telegram channel, and I will be sharing my link, and also you can send me messages in Instagram. I will try to address as per my convenience, right? And I think this is all. Okay, and I think देखिए जो भी बिगिनर्स है ना, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ना यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे कि व्हाट शुड बी एन अप्रोच ऑफ अ बिगिनर, हाउ टू स्टार्ट। आप जितना हो सके वो सब यूट्यूब वीडियोस देखिए और अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए। और मुझे लगता है कि डायरेक्टली यूपीएससी प्रिपरेशन में जंप करने से बेहतर है आपने पहले एग्ज़ाम के जानिए और एग्ज़ाम के बारे में आप पढ़िए, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए, राइट। आई थिंक इट्स ऑलरेडी 81 minutes, so I should end my session here, and whatever question you were still asking, you can put these questions in my Telegram channel, right? And okay, thank you, and always remember that for the last tips I would like to end with this note that
ये एग्ज़ाम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि सिविल आप ऐसे सोचिए कि कितने जन को अभी भी पढ़ने का मौका नहीं मिलता है इंडिया में, और आपको ये पढ़ने का मौका मिला है, ये एग्ज़ाम लिखने की अपॉर्चुनिटी मिली है। तो आपने आपके टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। और ये साइकिल इतना लंबा है, मतलब इतने ग्रोलिंग है, आप जितना जल्दी ये साइकिल से बाहर आ पाएंगे आपको बहुत रिलीफ होगा। और ट्राई कीजिए कि मतलब ये आप मत सोचिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर सकते, इस बार भी कितने जन किए हैं, तो आप कैसे जल्दी जल्दी निकल आ सकते हैं ना, आप जब एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। तो एकदम हर एक चीज़ फ्रॉम फॉर्म फिलअप, कैसे फॉर्म फिलअप में भी कभी कभी किसी का गलती हो जाता है, आप वो सब भी एकदम बारीकी से ध्यान से देखिए और वो गलती एकदम मत कीजिए। फिर बाकी सब भी जो भी, जैसे अनुदीप दुरिशेट्टी सर के जो आप देखेंगे, उन्होंने एक ब्लॉग में बहुत अच्छे से बताया है कि उन्होंने क्या क्या गलती किए थे जिनके लिए उनको इतना वक्त लग गया था। तो आप हमेशा ये दिमाग में रखें कि वो सब गलती आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप इनके ब्लॉग पढ़ सकते हैं। और स्ट्रेस तो देखिए आता रहेगा, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आप मैंने जैसे कर रही थी, एक तो मैंने जो भी मेरे क्लोज थे उनसे मैं बातें करती रही थी, मेरी मम्मी, मेरे प्रोफेसर्स, और बाकी खुद को मैं मोटिवेट करती थी, जैसे कुछ पेन एंड पेपर लेके खुद को मतलब सेल्फ मोटिवेशन ऐसा। I will be sharing my Telegram link, channel link, and Instagram ID also, and there you can ask me, right? Okay, thank you, and thank you UPSC time to give me this opportunity to share my experiences with the aspirants, and thank you all the aspirants also.